So, hello, my aspiring officers, and welcome to EduTab. And guys, you can see behind me the agenda of today's session, that is the G20 Summit of India that has recently been concluded in न्यू दिल्ली। तो आज के सेशन में हम लोग पूरा G20 डिस्कस करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ G20 वाज फॉर्म, G20 एक्चुअल में क्या है और G20 इंडिया में क्या क्या चीजें हुई हैं, हर एक चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टे टिल दी एंड। बिफोर आई टॉक अबाउट दिस वीडियो फर्दर ऑन गाइज, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक्स दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू। दीज गाइड बुक्स कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन वेयर you will get everything starting from the syllabus, the sources to cover that syllabus, and the most important thing guys, you will be getting the previous year question papers here to analyze the things which are coming in the examination, and all this thing is provided to you at free of cost. तो आपको सिर्फ अपना एक सेकंड देना है, click on the link that is given in the description below and these guidebooks will be yours. Now let's first talk about the background of the G20 कि G20 कैसे फॉर्म हुआ था। So guys, in 1999 this G20 group was formed, which is basically in the beginning was an informal group discussion of the finance ministers and the central bank governors, which was basically based on the Asian financial crisis of 97-98 जो हुआ था, और उस फाइनेंशियल क्राइसिस में बहुत बैंक्स बैंकरप्ट हुए थे। So to look at the economic perspective, this thing was formed. Later on क्या हुआ, 2007-2008 में global financial crisis आई, and then when the global financial crisis, which was again a huge impact on the economy, then the head of the state was also involved here, which you can see prime minister, presidents, they were also involved because the economy was crashing. So उस चीज को बेस करके the first G20 summit was held in the year 2008, that's in Washington DC. So this is the first and the foremost thing you must remember about the G20, that the first G20 summit has taken place in Washington, whereas the informal discussions of this group was formed in 1999. Now we can see every year the G20 meeting is taking place. So this thing got started from the year 2011, जब जहां से आपके G20 summits जो हैं वो annually हो रही हैं, and they are being conducted on rotational wise. Presidency is transferred among the G20 nations here. Now the next important thing is, अब ये G20 है क्या एक्चुअल में? G20 is a forum which is focusing on international economic cooperation, where it is not just talking about the financial perspective, it always talks about the environmental perspective, agricultural perspective, ठीक है जी, security perspective, startups, everything. The whole economic cooperation is being done under the G20 group here. देन द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, G20 इतना प्रोमिनेंट क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इंडिया को प्रेस किया गया समिट के रिगार्डिंग? बिकॉज इफ आई टॉक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन गाइस, दिस इज कंस्टिट्यूटिंग अबाउट 2/3 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। फिर यहां पे अराउंड एंड अराउंड आपका 85% जो ग्लोबल जीडीपी है, इट इज कंबाइनिंग हियर इन द G20 समिट, और 75% जो ट्रेड है वो कंट्रोल किया जाता है बाय द G20 members here. So that's why this is a very big achievement when India has conducted this summit. Now the most important thing guys, G20 does not have any headquarter and neither it has any specific office और कोई employee, कुछ नहीं है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा फिर G20 वर्क कैसे करता है? So guys, the country who is basically hosting the G20 summit provides the staff for the G20, and the second important thing is this whole event is being organized with the help of a very important person, that is the Sherpa. So he is the person who is leading the whole process here. Delegations कैसे आएंगी, क्या एग्रीमेंट साइन होंगे, क्या फाइनल समिट में क्या क्या डेक्लरेशंस हैं, क्या चीजें हैं, सारा प्रोसेस is being conducted by Sherpa, and for India the Sherpa is Mr. Amitabh Kant. So he was the Sherpa here, ठीक है जी, for India. That's the thing here. Then the next important thing here is how G20 presidency works. It has a very important term that's known as TRIOCA. TRIOCA means ये तीनों countries मिलके इसको basically carry forward करती हैं. That's the TRIOCA simply talks about the 3 countries. That is the presiding country जिसने इससे पहले होस्ट की थी, the present country, and the future country who will be hosting the summit here. So this year the TRIOCA consists of 2022 it was Indonesia,
2023 it's India and 2024 it will be Brazil here. ठीक है जी, that's about the troika here. एंड नाउ द वर्किंग ऑफ दिस G20 दोस्तों बेसिकली वर्क करता है आके आपके दो स्पेसिफिक ट्रैक्स के ऊपर. ट्रैक भागने वाला ट्रैक नहीं, इट्स अबाउट द system with which it works. It consists of two tracks. One is the Sherpa track and the second one is your finance track here. अब दोनों में difference क्या है? Let's understand this thing. This is if I talk about here, Sherpa track है जहां पे आपके socio economic issues like agriculture, disaster, economy, these things are being discussed here. You have seen that India has conducted lots and lots of meetings. ठीक है, जहां पे एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, आपकी क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है. सो दिस वर्किंग ग्रुप मीटिंग्स विच आर डिस्कसिंग द फंडामेंटल, दे आर पार्ट ऑफ द शेरपा ट्रैक. ठीक है जी, टोटल 13 ग्रुप्स होते हैं इसके अंडर. ठीक है जी, जहां पे फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहां पे हुई थी? दैट वाज एट राजस्थान, दैट वाज इन उदयपुर. सो दिस इज द मीटिंग यू हैव टू रिमेंबर. अब दूसरा पॉइंट, एक चीज पहले मैं आगे जानने से पहले बताऊंगा, इंडिया में यार बहुत ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, अराउंड एंड अराउंड मैं बोलूं 120-130 मीटिंग्स हुई होंगी. डू यू नीड टू रिमेंबर एवरी मीटिंग? आंसर इज कंप्लीटली नो, बिकॉज नाउ द फाइनल समिट हैज टेकन प्लेस. तो अब हमें समिट पे ही फोकस करना है. द डेक्लरेशंस दैट हैव बीन डिजाइन्ड, दैट इज द थिंग वी हैव टू फोकस हियर. मीटिंग्स के ऊपर नहीं करना, यस इंपॉर्टेंट है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो हियर. Now coming back guys, let's talk about the financial track. Finance track as the name is suggesting, कोई भी फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज हैं, चाहे वो आपको रेगुलेशंस है फाइनेंस के रिगार्डिंग, या मैं आपको बोलूं कोई इंफॉर्मेशन है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई आर्किटेक्चर ऑफ फाइनेंस रिगार्डिंग, एवरीथिंग हैज बीन डिस्कस्ड हियर अंडर द फाइनेंस ट्रैक. तो टोटल 8 जो ग्रुप्स हैं, दे आर बी फॉर्म्ड अंडर द फाइनेंस ट्रैक हियर. ठीक है, जहां पे हम देखो G20 टेक स्प्रिंट मीटिंग हुई थी रिसेंटली, तो वो किसके अंडर हुई थी? दैट वाज अंडर फाइनेंस ट्रैक हियर. नाउ इज यू कैन सी हियर, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि दो हैं, आप बोलोगे से तीसरा भी तो लिखा हुआ है एंगेजमेंट ग्रुप. तो ये क्या होता है? एंगेजमेंट ग्रुप इज समथिंग न्यू विच बेसिकली टेल्स अस कि पॉलिसीज जो हम लोग डिसाइड करते हैं उसका ड्राफ्ट जो है, विच इज बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड बाय द engagement group here. तो आपने लिखा होगा business 20, startup 20, labor 20. So this is what we are saying is every countries are coming here और वो वहां पे क्या करते हैं, डिस्कस करते और कहते हैं ये पॉलिसीज हम बनाने के बारे में सोचेंगे. तो उनका जो ड्राफ्ट है दैट इज बीइंग डन बाय द एंगेजमेंट ग्रुप हियर. तो काफी ज्यादा एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, टोटलिटी फॉर टॉक अबाउट 11 एंगेजमेंट ग्रुप्स हैं, जिसमें से इस साल दो बहुत प्रोमिनेंट हैं. वन ऑफ देम इज CSAR, चीफ साइंस एडवाइजर्स रिसर्च. ठीक है, दैट्स द ग्रुप दैट हैज बीन फॉर्म्ड दिस ईयर. ये पहली बार बना है एंड द फर्स्ट मीटिंग हैज टेकन प्लेस इन रामनगर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल नॉट से यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 11 ग्रुप्स हियर. इसको याद रखना क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम दिस ग्रुप गॉट स्टार्टेड फ्रॉम द इंडियन प्रेसिडेंसी. और पहली मीटिंग कहां पे हुई है? आपकी रामनगर में. What is this group all about? This basically tells us about the discussion on the global science and technology related policy issues. This is the thing here. ठीक है जी, अब यहां तक हमने सारी चीजें समझी हैं. Now we have understood what actually was the G20 and why it's important. Now let's focus on the G20 India Summit, that is the summit which we have to discuss. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों ने अचीव की है इस बार. First of all, the thing is, it's the first time India is hosting such an important summit. That is the first time हुई है, और कहां पे हुई है? That's in New Delhi. So that's why the summit is known as New Delhi Summit, as well as the declaration is further known as the New Delhi Declaration. ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है न्यू दिल्ली डेक्लेरेशन G20 में कहां पे हुई थी? दैट इज इंडियाज प्रेसिडेंसी. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, द थीम हियर वाज बेसिकली ओरिजिनली इट्स नेम एज वासुदेव कुटुंबकम. यही थीम है जिसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बोला जाता है वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर, दोनों सेम ही है, ये चीज याद रखनी है. और इसके बाद आपको एक क्वेश्चन, इफ एन एग्जामिनर रियली गोज इनटू इन डेप्थ, he can ask you वासुदेव कुटुंबकम जो है वो कहां से लिया गया है? The word has been picked from, that is महा उपनिषद. Getting this point? ठीक है जी. अब आते हैं कि this summit has been conducted basically, or the whole G20 presidency of India was focusing on this 6 pillars.
अब इसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पे समझो स्टोरी को, कैसे याद होंगे। यू लुक एट द होल year previous year India was focusing on 6 prime things. First of all climate change, जहां पे मिशन लाइफ हमने डिस्कस किया है और बहुत सारा क्लाइमेट रिलेटेड इनिशिएटिव्स पर वी आर फोकसिंग ऑन, पंच अमृत स्ट्रेटजी वी आर फोकसिंग ऑन, तो क्लाइमेट वाज वन ऑफ द थिंग इंडिया इज फोकसिंग ऑन. Second is we are consistently been talking about 5 trillion economy, which means we were focusing on the growth there. तीसरा हमें क्या था, आपने अभी देखा है लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इंडिया इज वेरी मच इंक्लूड और यू कैन से वेरी मच इंक्लूडेड, बहुत ज्यादा हम लोग घुसे हुए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो वो चीज हम लोगों ने पूरे साल में देखा, न्यूज आर कमिंग ऑन दैट पर्सपेक्टिव. फिर डिजिटल इंडिया, डिजिटल हाईवेज, भारत नेट, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम एक्सपेंशन आर गोइंग ऑन. सो डिजिटाइजेशन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं एज अ कंट्री. Then the thing is we want to be in such a place where हर चीज 21st टेक्नोलॉजी के हिसाब से हो. और हम बोलते हैं कभी भी सिंगल इंस्टीट्यूट नहीं, जहां पे हम लोगों ने यूनाइटेड नेशंस को भी बोला है that it also needs to be updated, the Security Council needs to be updated because otherwise multiple institutions would be existing there. फिर आ जाता है लास्ट में, हर एक चीज हम लोग लेके आ रहे हैं वुमेन स्पेसिफिक. वी वांट टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन. दिस इज व्हाट इंडिया इज बीन डूइंग फ्रॉम द पास्ट 1 years. अब देखो यही सेम चीज झलकी कहां पे है, हमारे कोर फीचर्स के ऊपर भी, जहां पे हमने कहीं पे भी टेररिज्म ऐसा कुछ नहीं बोला. द क्लियर कट फोकस वाज फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट financing as well as the life initiative. So life here is depicting about the mission life which prime minister, which India has started. It is focused here. Then inclusive and resilient growth is the focus here, but it has to be done in an acceleration manner. तो स्लो नहीं करनी, accelerated growth is required here. That's the point was discussed here. तो ये भी हमारा सेकंड फोकस एरिया होगा. थर्ड था accelerating the progress of sustainable development goals. Fourth is basically technological transformation where digital public infrastructure plays a prominent role here. ठीक है, किसके साथ होगा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. तो इस तरह याद कर सकते हो. लास्ट इज मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस ऑफ द 21st century is required, so that's the focus here. And the last was women led development. तो इसका मतलब जो एक्चुअल में इंडिया कर रहा है वही इंडिया ने यहाँ पे अपने प्रायोरिटी एरियाज यहाँ पे रखे थे. तो दिस इज द थिंग हियर. अब आते हैं फर्दर ऑन, जो बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने. दिस मैन, इफ यू सी बिहाइंड मी, इट्स द कर्ता धर्ता ऑफ दिस G20 समिट एंड ही वाज रियली अप्रिशिएटेड आफ्टर द G20 समिट हियर. वी विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग, क्यों इनको अप्रिशिएट किया गया अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, बहुत चीजें करने वाले हैं. तो अभी तक तो हम सिर्फ समझे क्या हो ना, अभी करना क्या है तो वो भी हम डिस्कस क्या हुआ एक्चुअल में. तो द शेरपा फॉर इंडिया जस्ट डिस्कस इज मिस्टर अमिताभ कांत. ठीक है जी. फिर हर बार क्या होता है G20 में ना, कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया जाता है. सो दिस ईयर द कंट्रीज दैट इंडिया हैज इनवाइटेड, टोटल 9 कंट्रीज वर देयर. और 9 कंट्रीज कौन सी है देखिए समझे यहाँ पे, वो है आपकी बांग्लादेश, स्पेन, इजिप्ट, मॉरिशियस, नेदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, यूएई एंड सिंगापुर. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डू वी नीड टू रिमेंबर दिस 9 कंट्रीज? आंसर इज yes, because if looking at the recent examination of RBI ने डेप्थ में पूछा है, तो ये आपको नाबार्ड भी पूछ सकता है दोस्तों कि इनमें से कौन मेंबर नहीं था. तो दिस 9 यू शुड रिमेंबर हियर. और देखो इजी है, बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत अच्छे टाइज हैं. रिसेंटली न्यूज में भी है, बांग्लादेश एनडीबी का मेंबर बना, तो बांग्लादेश इज हियर. इजिप्ट बिकेम द मेंबर ऑफ एनडीबी, वी हैव इनवाइटेड इट. हमारा सबसे बड़ा अलाय कौन है, यूएई, इनवाइटेड इट. ठीक है जी. नाइजीरिया के साथ हम कॉमनवेल्थ नेशंस में फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं, सो नाइजीरिया इज हियर. देन दी मिडल ईस्ट, ओमान इज हियर. ठीक है जी. फिर हमारी सिंगापुर एयरलाइंस याद रखिए, तो इंपॉर्टेंट है सिंगापुर. एंड देन दीज आर द 2 कंट्रीज. नेदरलैंड्स में हाथ रिसेंटली हमारा 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट ट्रेड डेस्टिनेशन बन रहा है, सो नेदरलैंड इज हियर. एंड देन इज मॉरिशियस, जिसके साथ हम लोग बहुत ज्यादा टाइज बना रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू कुड रिमेंबर दिस 9 कंट्रीज हियर. नाउ in this whole summit there are 2 groups, there are 2 meetings which were really important. One I've discussed with you, that is Chief Science Advice Researchers वाली जो मीटिंग हुई थी वो मैंने आपसे पढ़ी है. दूसरा आते हैं आपके स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप. ठीक है जी, एज वेल एज द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप. सो दीज आर द 2 वर्किंग ग्रुप्स. इन टोटलिटी इट विल बी 3. These 3 working groups have been launched, or you can say have been established for the first time under the G20 under India's presidency. तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. Now let's come to the final summit that has taken place in New Delhi. ठीक है जी.
अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बहुत चीजें, इंडिया हैज डिपिक्टेड इट्स कल्चरल डाइवर्सिटी हियर, तो बहुत चीजें डिपिक्ट की गई थी। नटराज स्टैचू इज देयर, देन यू कैन से कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क चक्र वाज देयर, गॉन पेंटिंग्स, बहुत डिफरेंट तरह की पेंटिंग्स थी। अब मैं आपको बोलूं कि आपको सब याद करना है, आंसर इज नो, बिकॉज फिजिबिलिटी नहीं है, ना हो पाएगा, हमें सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, पर पढ़ना इतना है कि उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। दिस इज द थिंग हियर, ठीक है, सिर्फ एक आइडिया ले लीजिए पर याद नहीं करना है, ये सबसे पहला पॉइंट है। एक चीज जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड थी, दैट वाज द नटराज स्टैचू व्हिच वाज being depicted at Bharat Mandapam, which is known as the name of the new name of the Pragati Maidan here. This name here, if I talk about this Nataraj statue, this name is very, very important. Radha Krishna Satapathy, sir, the name is very important. The sculptor who has made this specific statue here. Why? Because it's his lineage. पुरुषों से, यानी कि उनकी जो आप कह सकते हो, his lineage is making this Nataraj statue, and that's basically the lineage is belonging to Chola dynasty. So that is something that's very, very important for us about this person here. तो इसलिए इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे याद रखना है। Now let's come to the summit here. तो the New Delhi Declaration, if I talk about क्यों इतना ज्यादा इंडिया को चेयर अप किया गया या क्यों इतना ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया गया है, because it's for the first time that the declaration has been approved by 100% consent. किसी का भी कोई डिसलेक्ट या कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं, 100% कंसेंट के साथ पास हुआ है। दैट्स द फर्स्ट थिंग हियर। सेकंड पॉइंट इज फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज नो फुटनोट, कोई भी आपको डिसएग्रीमेंट या फुटनोट दिखा ही नहीं है। दिस इज व्हाई अमिताभ कंत जी को इतना ज्यादा क्यों बोला गया है, बिकॉज इट्स ऑल हिज हार्ड वर्क, ही हैज सिट अ लॉट एंड लॉट ऑफ डिस्कशंस उन्होंने की हैं इसके ऊपर। तो दिस इज द थिंग वी कैन सी हियर। Important are दोनों points, they could be asked in the examination. Along with that, the declaration has basically been drafted by these four prominent officers, that is Abhay Thakur, Ashish Sinha, Nagaraj Naidu, and the name very important is Enam Gambhir. तो Enam Gambhir जो है, she is the only woman officer who was here, who has drafted the final declaration here. ठीक है। एंड नाम गंभीर आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशंस में, शी इज वेरी फेमस, ठीक है, बहुत बार इन्होंने इंडिया पाकिस्तान डायलॉग्स के ऊपर बोला भी है, तो हर नेम इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, नाम गंभीर का, ठीक है। तो दिस इज द नेम यू नीड टू रिमेंबर हियर। फिर प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया हैज बीन हैंडेड ओवर, यू कैन सी हियर द प्रेसिडेंसी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील, दैट इज मिस्टर लुला डे सिल्वा। सो इनको हमने प्रेसिडेंसी जो है वो दे दी है। और इसके साथ क्या हुआ है, टोटल वी हैव 20 मेंबर्स, बट नाउ अफ्रीकन यूनियन हैज बिकम द परमानेंट मेंबर ऑफ G20 हियर। नाउ आई कैन सी वन कॉमन क्वेश्चन दैट विल बी इन आवर माइंड इज कि सर अब G20 हो गया, G21 हुआ है, उसके ऊपर अभी कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। They are saying whether the next year they will be talking it as a G21 or G20, that will be decided later on. But the thing you should remember here is now African Union is a permanent member here, where if I talk about G20, total we have 19 countries and we have 2 unions, that is European Union and now it is अफ्रीकन यूनियन। और फिर जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई, तो यहीं पे बात की गई थी दैट अ रिफॉर्म हैज टू बी रिक्वायर्ड फॉर the UN Security Council and it's being discussed for the first time during India's presidency here. ठीक है जी। अब आते हैं आगे के क्या क्या चीजें यहाँ पे अनाउंस हुई। सबसे पहले चीज क्या हाईलाइट हुई थी यहाँ पे, अ प्रॉपर फ्रेमवर्क हैज बीन डन हियर, दैट इज फॉर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। A framework will be made by the name of Global Digital Public Infrastructure Repository that will be created under the G20 now. Second thing is with respect to women empowerment, तो यहां पे बोला गया एक प्रॉपर वर्किंग ग्रुप क्रिएट किया जाएगा ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जहां पे G20 वुमेन्स मिनिस्टरियल मीटिंग जो अगली बार होगी, तो प्रॉपर एक ग्रुप उसके अंडर बनाया जाएगा ऑन द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसकी फर्स्ट मीटिंग होगी ब्राजील में। Then guys, with respect to financial track for enhancing cross-border payments, it has been said that a proper cross-border payment system for faster, cheaper and transparent system will be created by the year 2027. So this is important for us. This year will be important for the examination point of view.
ठीक है जी। अब आते क्या क्या चीजें अनाउंस हुई थी, तो हमें पता है क्या क्या चीजें अनाउंस हुई, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था अभी पीआईबी वाले सेशन में। ठीक है जी, दैट इज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में बेसिकली क्या है, मैंने बहुत बार डिस्कस किया था पीआईबी में भी, अभी रिसेंट जब हमने G20 की डिस्कशन की थी तब भी डिस्कस किया था पीआईबी में, कि ये अलायंस बेसिकली इट इज अलायंस ऑफ 3 कंट्रीज, दैट इज इंडिया, Brazil and USA, who were the founding members of this alliance. Now at present, when this alliance is officially launched during the Delhi Declaration, there are total 19 members who have adopted this alliance. अब इसमें सबसे खास बात हो क्या है, पूरी की पूरी G20 कंट्रीज ने इसको अभी तक इसको अडॉप्ट नहीं किया। That is only 7 countries from the G20 members who have adopted this global biofuel alliance, and these countries are India, Brazil, USA, the founding members. Then we have Argentina, Canada, Italy and South Africa. ठीक है जी, यानी कि अर्ग जो है वो काना है और वो इटली और साउथ अफ्रीका में घूम रहा है। That's what you can remember here. Then the next is non-G20 members. So there were 8 countries which are basically non-G20 members here, and neither they were invited countries. ठीक है, they are Iceland, Kenya, Guyana, Paraguay, Seychelles, Sri Lanka and Uganda and Finland. So these are the 8 countries here. अब इसके बाद इंडिया ने भी इनवाइट किया था कुछ मेंबर्स को। फ्रॉम देयर आल्सो देयर आर 4 कंट्रीज हु हैव बिकम द मेंबर ऑफ दिस अलायंस। दे आर बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशियस एंड यूएई। So these are the 19 countries who are the members here. And guys, if I talk about do you need to remember these things, I will say yes. Reason being that because the examiner can play with us and can ask us a question जो कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो सकता है। कैसे कि भाई G20 में से कौन सा मेंबर नहीं था, तो इसका मतलब क्या हमें 19 मेंबर्स याद करने हैं। मैं बोलूंगा आपको आइडिया होना चाहिए 19 मेंबर्स का, बट ये 7 अच्छी तरह याद होने चाहिए कि ये 7 में से तो नहीं है। फिर दिस मेंबर विल बी आस्क्ड बिकॉज दीज आर नीदर बीइंग इनवाइटेड nor they were members, so the non-members are here, and out of the 9 invited countries these 4 have joined. So this is the thing here. अब एक्चुअल में इसके साथ साथ 12 international organizations have also become the part of this global biofuel alliance, where the point if I talk about here is कि अब आपको क्या ये 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस याद करनी है? माय आंसर विल बी नो है गाइस, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर दिस थिंग्स इन अ लिमिटेड मैनर। ठीक है जी, मैं आपको 12 भेज भी दूंगा, अगर लिख भी दूंगा ना तो फिर भी याद नहीं करनी। रीजन बिंग क्या है, क्योंकि इतना याद ही नहीं होता और फिर हम एग्जाम में गलती करके आएंगे। तो अगर आया क्वेश्चन छोड़ दो इसको, ठीक है, बट पढ़ना ऐसा है कि जितना पढ़ा वो भूलना नहीं है। दैट्स द थिंग हियर। अब आते हैं इसके ऊपर सबसे पहले कि ये अलायंस क्यों बना था, क्योंकि इस अलायंस का सिंपल ऑब्जेक्टिव यही था, वी वांट टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल। ठीक है, दैट्स द सोर्स ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी, दैट्स द कोर थिंग हियर। वी कैन टॉक अबाउट बायोफ्यूल्स। हम लोग किस पे काम कर रहे हैं, देखिए, फ्लेक्सी फ्यूल्स, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, बायो एथेनॉल के ऊपर इंडिया काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इंडिया इसी चीज पे काम कर रहा है। तो वी हैव प्लेड अ वेरी स्मार्ट थिंग हियर। आप देखो कितना स्मार्ट इंडिया ने प्ले किया है। द थिंग्स वेयर वी आर फोकसिंग ऑन, हमने बोला G20 को आप भी वही करो, बायोफ्यूल पे आप भी आओ। ठीक है जी, दिस इज द थिंग हियर। अब वाई द 3 फाउंडिंग मेंबर्स इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो इंडिया, यूएस और ब्राजील क्यों इतने प्रोमिनेंट थे इस अलायंस के ऊपर, बिकॉज almost 85% of the production of biofuels, and if I talk about 81% of the consumption of ethanol is being done by these 3 countries. If I talk about ethanol, तो ethanol से क्या याद रखना है, that is, quickly tell me, ethanol blending target. ठीक है, ethanol blending target, India has preponed its target for 20%, that is by 2025. ठीक है, फिर हमने रिसेंटली अभी पीआईबी में पढ़ा था फ्लेक्सी फ्यूल्स के ऊपर, वो भी काइंड ऑफ एक अलग तरह का आपका सस्टेनेबल फ्यूल आप बना रहे हो। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल कौन सा बना था, इनोवा। ठीक है, फर्स्ट फ्लेक्सी फ्यूल कार हमने बनाई थी। फिर हमने रिसेंटली पढ़ा हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर, जहां पे हमने पढ़ा था विस्तारा पहली एयरलाइन बनी है इंडिया में डोमेस्टिक टू यूज अ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। So these are the things you should also remember, जो आप इससे यहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। एंड आई ऑलवेज से टू यू गाइस, करंट अफेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दैट्स द रिलेशन बिटवीन द थिंग्स, तभी याद होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल बन जाता है। तो दिस इज अबाउट दिस बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, जहां पे हम लोग प्रमोट करेंगे, कोई टेक्नोलॉजी है, कोई प्रमोशनल स्ट्रेटेजी है, कोई मार्केटिंग है, एवरीथिंग विल बी डन बाय दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ठीक है, अभी तक कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है, तो दैट इज द थिंग यू शुड बी हियर। चलिए, अगला आता है इसके बाद के
अगला पॉइंट है जो हमने वन बेल्ट वन रोड को चैलेंज किया। कैसे? दिस इज द थिंग, हम लोग बोलते हैं ना, आपने हेडिंग सुनी होगी बहुत प्रोमिनेंट, क्या था? भारत ने चाइना को हिलाया। कैसे हिलाया भाई? हिलाया कैसे था? सिंपल थिंग हियर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वी आर फोकसिंग ऑन दिस थिंग। हमने बोला ठीक है तुम वन बेल्ट बनाओ, हम एक अपना कॉरिडोर बनाएंगे। कॉरिडोर सिंपल है दोस्तों, ठीक है जी, जो कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंडर बना है, ठीक है। और ये एक नेटवर्क है जहां पे सिर्फ और सिर्फ, अब तक आप सोचोगे कि सर हम कैसे जाएंगे, दिस इज द कॉमन थिंग, इवन आई थॉट ऑल्सो दिस थिंग, ठीक है, कि यार हम कैसे बना लेंगे, मतलब हम जाएंगे कैसे, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान ही आ जाता है, तो हम लोग कैसे जाएंगे मिडल ईस्ट में? दिस इज द थिंग दैट आई सी दिस थिंग। तो ये हो क्या रहा है, पहले ना देखो यहाँ पे सी लेन्स है, जहां पे मतलब यहां से आप मिडल ईस्ट में जाओगे थ्रू सी फ्रॉम इंडिया, देन अ प्रॉपर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, दैट्स द रेलवे हियर, and further on again the sea lane comes, and then you have a road infrastructure. So this is the thing here, it includes everything here, railway line, roads, transport corridors, everything will be used here to make an alternative to the one belt one road initiative, ठीक है। इसके लिए काम भी स्टार्ट हुआ है। सो MOUs has been signed between India, USA, Saudi Arabia, UAE, European Union, Italy, France and Germany. So they have basically signed an agreement for this alliance here, ठीक है जी। अब देखो सिंपल फंडा याद रखना, मिडल ईस्ट की बात हुई तो देखो याद रखो, सऊदी अरब, UAE, ये हो गया मिडल, तो साउथ और UAE जो है हमारे मिडल में है। फिर यूरोपियन यूनियन, इटली, फ्रांस और जर्मनी, ये बिल्कुल हमारे नॉर्थ में है, तो दैट इज नोन एज द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न कॉरिडोर, दिस इज हाउ इट विल बी कनेक्टिंग है। तो यही चीज यहाँ पे है, दो सेपरेट कॉरिडोर्स हैं, ईस्ट और नॉर्थ, जो कि कनेक्ट करेंगे अरेबियन गल्फ को ईस्टर्न और अरेबियन गल्फ को यूरोप के साथ कनेक्ट करेगा आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर, ठीक है। सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कॉरिडोर। अगेन द डिटेल्स आर गोइंग टू कम फर्दर ऑन ऑल्सो, ठीक है, कि क्या पर्सपेक्टिव है, क्या टारगेट है, बट दिस इज व्हाट हैज बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग दिस डेक्लेरेशन हियर नाउ, ठीक है जी। अब आते हैं इसके अलावा अगली चीज के ऊपर, दो और प्रोमिनेंट चीजें हुई, जिसको एक बोलता जाता है रोड मैप टूरिज्म, इफ आई टॉक अबाउट, हैज बीन लॉन्च, जिसका नाम था गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म, व्हिच इज अ व्हीकल फॉर अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो यहाँ पे ब्लूप्रिंट किया गया है सस्टेनेबल ग्लोबल टूरिज्म के ऊपर, जहां पे 5 प्रायोरिटीज कौन से हैं, देखिए, ग्रीन टूरिज्म, ठीक है, डिजिटलाइजेशन, स्किल्स, tourism, MSMEs and a proper destination management. This is the 5 priority areas of the Goa roadmap for tourism. Very important here. फिर आ जाता है लाइफ मिशन, लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दैट इज ट्रैवल फॉर लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, विच इज एन इनिशिएटिव नॉट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इट्स एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म अंडर मिशन लाइफ। जहां पे आपका फंडा सिंपल क्या है, आप क्या करोगे, sensitize and mobilize the youth of India, which will be focusing on positioning India as a global destination for sustainable tourism. तो आप देखोगे मेडिकल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म पे भी कितना काम हो रहा है। इफ यू लुक एट इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छी चीज लिखी थी, क्या कि इंडिया इज अ हब फॉर वन थिंग, जिसको हम लोग बहुत कम पोटेंशियल को यूज नहीं करें, वो क्या था, हमारा मेडिकल टूरिज्म। तो देखो कहीं ना कहीं द होल समिट is aligned to the vision of India. मेडिकल टूरिज्म को बोला था हम प्रमोट करेंगे। इफ यू नो दिस थिंग, हमने डिस्कस किया था मेडिकल टूरिज्म, इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया था ना, मेडिकल टूरिज्म में इंडिया का रैंक क्या है, 10th है, दैट वाज हाईलाइटेड इन द इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है। फिर हमने नेशनल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई है मेडिकल टूरिज्म के ऊपर। तो मतलब क्या है, हम लोग अपना टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, that's the thing. Lifestyle environment, it's a pro-planet people change, with change in demand, change in supply has to be created there, ठीक है। जहां पे the target is not just the India part, it's about the global thing. We want to make this initiative global. तो इसीलिए क्या कर रहे हो, उसको आप प्रमोट करोगे और मोबिलाइज करोगे थ्रू दिस ट्रैवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव। So this was the things guys which were basically discussed in this summit. But along with that, you might have many questions in your mind. So there are various number of meetings that have been concluded here. तो क्या सारी पढ़नी है? Various people have chaired different meetings, क्या सारी याद करनी है? मैं आपको बोलूंगा नहीं, क्योंकि देखिए डिफरेंस होता है एक मीटिंग और सबमिट के बीच में। यही चीज मुझे एंड में बतानी थी। नाउ व्हाई दिस सबमिट इज इंपॉर्टेंट। मीटिंग का मतलब क्या है कि आपने छोटी छोटी चीजें डिस्कस की। सबमिट इज द कंक्लूजन ऑफ ऑल दिस मीटिंग्स। सो द थिंग्स विच आर बीइंग देयर इन दिस सबमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। अब कौन सी मीटिंग्स इंपॉर्टेंट है, मैंने कुछ आपको यहां पे बता दी हैं।
ठीक है जी। कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है? वन इज अमिताभ कंत, सेकंड यू शुड रिमेंबर अबाउट the B20 chairman which has been asked in the examination, which is N Chandrasekharan, जो कि CEO हैं आपके टाटा होम्स के, तो he is the person to be remembered here B20 में, N Chandrasekharan सर। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गाइस, मैंने आपको बताया था 100th समिट आपको याद रखना, जो अभी पिछले सेशन में हमने डिस्कस किया था PIM में। 100th समिट कहां पे हुई है? वाराणसी में हुई है। अब ना वाराणसी में एक चीज डिस्कस हुई जिसको हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं, दैट इज द महर्षि इनिशिएटिव। ठीक है, सो मेनी ऑफ अस वर थिंकिंग महर्षि इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इंडियाज प्रेसिडेंसी ऑफ G20। इट्स नॉट गाइस। महर्षि इनिशिएटिव बहुत पुराना इनिशिएटिव जो कि मिलेट्स और अदर एग्रीकल्चर ग्रेन्स पे फोकस करता है, विच वाज लॉन्च्ड वे बैक इन द ईयर 2008। बट नाउ अगेन कम्स द क्वेश्चन कि सर फिर G20 में क्या हुआ था? G20 में this initiative was discussed that what will be the impact of this initiative on the G20, that is under the MECS, Meeting of Agriculture Cooperative Societies में डिस्कस हुआ था at Banaras in the 100th summit. That's why it has been highlighted more. And the most thing is this Maharishi initiative, guys, if I talk about here, it is basically an initiative which is aligned with International Year of Millets, which is 2023. तो यहां से वो चीज जो है वो आपको याद रखना, इट्स नॉट रिलेटेड टू इंडियाज प्रेसिडेंसी, इट्स बेसिकली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये चीज आपको यहां पे याद रखनी है। सो नाउ आई होप गाइस यू हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट कि इंडिया ने क्या G20 है, क्या चीज हमने डिस्कस किया, इंडिया में क्या क्या हुआ है G20 के रिगार्डिंग। अब एक फटाफट में क्विक रिवीजन करते हैं विद द हेल्प ऑफ MCQs हियर। लेट्स लुक एट योर टेस्टिंग हियर, ठीक है, और ऑनेस्टली मुझे आंसर देना हर एक स्टूडेंट ने, ठीक है जी। चलिए पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू G20। इट वाज फॉर्म्ड आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1997-1998। दूसरा है, द फर्स्ट G20 वाज हेल्ड इन 2008 इन वाशिंगटन, इन सॉरी न्यूयॉर्क। G20 समिट इज हेल्ड एनुअली सिंस 2008। तो यहां पे मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखिए फर्स्ट G20 समिट 2008 में हुई, बट न्यूयॉर्क में नहीं, इट टुक प्लेस इन Washington. G20 summit is held annually not since 2008 but since 2011. That's the point here. ठीक है जी। चलिए चलो guys, so this was about the first question. Now let's talk about the second question. ठीक है जी, let's see how many of you know this answer here. चलिए जी, second question आपके सामने है। Second is, which of the following statements is or are incorrect about the functioning of the G20? The process is led by the Sherpas of the member countries here. The Sherpa group often draft recommendations to the G20 leaders that contribute to the policy making process here, and it is an informal forum of finance ministers and central bank governors. Again, let's talk about the thing है, यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। वी हैव जस्ट डिस्कस यहाँ पे कि शेरपा ग्रुप नहीं है, इट्स द एम्पावरमेंट ग्रुप who gives you the draft recommendations. Then the next important thing, informal नहीं है, informal था जब एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, but from 2008 onwards the important thing is here the head of states are now involved. ठीक है जी। सो अब ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे पूरी का पूरी कंट्री इन्वॉल्व है। सो दैट्स वाई हियर ये फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स नहीं है, पूरी कंट्री इन्वॉल्व, इवन हेड ऑफ द स्टेट इज इन्वॉल्व हियर। सो द आंसर बिकम्स हियर ऑप्शन नंबर C, 2 and 3 will be the answer here. ठीक है जी, तो क्लियर अबाउट दिस थिंग। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। ठीक है जी, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 पिलर्स बाय द इंडिया ड्यूरिंग हिज G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन से 6 पिलर्स में यहां पे नहीं है? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, फाइनेंस एंड लाइफ, वुमेन एंड चाइल्ड लेड डेवलपमेंट, accelerated inclusive and resilient growth here, accelerating progress on sustainable development goals and maintenance peace in war-led areas. तो यहां पे कौन सा नहीं है प्रायोरिटी? देखो, अगर आप देखो बहुत ध्यान समझो, मेंटेनिंग पीस इन war-led areas, ठीक है, तो दिस इज व्हाट इंडिया हैज सेड विद रिस्पेक्ट टू इंडो रशिया यूक्रेन वॉर। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, वॉर की तो मैंने बोला बात ही नहीं यहां पे हुई थी। दूसरा, वुमेन एंड चाइल्ड लेड डेवलपमेंट, वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात हो रही है। सो दैट्स व्हाई हियर सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट गिवन हियर आर इनकरेक्ट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइस। आई होप मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने सिर्फ ओनली 5 आंसर लगाया कि वुमेन एंड चाइल्ड नहीं पढ़ा होगा। इट्स नॉट वुमेन एंड चाइल्ड, इट्स ओनली वुमेन लेड डेवलपमेंट। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, 2 and 5 इज द
नॉट वन ऑफ द 6 प्रायोरिटीज हियर। ठीक है जी। अब 2 क्वेश्चंस दोस्तों मैं दे रहा हूं आपको आज के लिए होमवर्क, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन हियर। सबसे पहला है कौन सी स्टेटमेंट अनाउंसमेंट्स के रिगार्डिंग है, तो यू कैन सी दिस क्वेश्चन। महाऋषि इनिशिएटिव वर्किंग ग्रुप्स के ऊपर अफ्रीका यूनियन नया मेंबर बना है, तो द आंसर यू हैव टू टेल मी इन दी कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस थिंग, फिर क्वेश्चन यही है कि कौन से यहाँ पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग द थिंग्स आर बीन गिवन हियर, आपको मुझे फिर बताना है यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर। तो क्विकली टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, और सेशन कैसा लगा ये भी मुझे पक्का बताना। ठीक है, कि अब आपको G20 से डर तो नहीं लग रहा ना, तो डू लेट मी नो अबाउट दैट इन दी कमेंट बॉक्स। ठीक है जी, चलिए। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द सेशन हियर। आई होप यू हैव रियली एंजॉयड द सेशन हियर। इफ यू हैव एंजॉयड द सेशन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, और इसकी पीडीएफ के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक फॉर विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन below here. Then for any kind of query guys, if you have in your mind, do not hesitate, we are always here to help you. आप मुझे email कर सकते हैं at hello@arutab.co.in. You can have a call with me on the number that is 81462-07241. एंड इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक है यू वांट मी टू डिस्कस इन माय अपकमिंग सेशंस, डू नॉट हेजिटेट गाइस, you can follow these channels, or either you can tell me about that in the comment box also. ठीक है, so wishing you all the best for the examination guys. Keep working hard, keep preparing hard. Bye bye.